Good afternoon, dear students. Today we discuss about papaya disease. Papaya leaf curl and food rot of papaya we earlier discussed. And next to ring spot disease of papaya. So it is a viral disease. It caused loss up to 20%. It is transmitted by aphids. Ring spot disease of papaya. It is a viral disease. कितना लॉस करती है 20%. Symptoms appear on leaves, stem and fruits. कहाँ कहाँ symptoms appear होंगे? Leaves, stem and fruits पे. Symptoms on fruits. Fruits पे कैसे symptoms होंगे? We have clearly seen picture. Ring spot नाम से ही मैंने कई बार बोला है कि नाम से बहुत कुछ क्लियर होता है. हेलो, हाँ बोलो. तो अभी तो मेरी ऑनलाइन symptoms appear on leaves, stem and fruits. Symptoms on fruits नेम से ही बहुत कुछ पता चल रहा है. रिंग स्पॉट, जिस लाइक दैट रिंग स्पॉट अपीयर ऑन फ्रूट्स. दिस करेक्टर सिम्टम्स फ्रॉम which our disease get its name are dark green, slightly sunken ring on the fruits. You have clear seen. Plant may bear small and deformed fruits with various degree of apocarpy. Double fruit formation, fruit within the fruits, यानी डबल फ्रूट फॉर्मेशन हो जाना इज ए टिपिकल करेक्टर सिम्टम्स. जैसे फूड प्रोट में क्या था? हनी कॉम अपीयरेंस. लाइक दैट इन विच एपोकार्पी, डबल फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट विद इन फ्रूट्स. द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड पेपेन एंड शुगर कंटेंट आर ग्रेटली रिड्यूस्ड. तो इसमें ज़्यादा याद करने का कुछ है नहीं. डिफॉर्मिटी आएगी, रिंग लाइक सर्कल्स होंगे, संकन स्लाइटली रिंग्स होंगी फ्रूट्स पे, और डिफॉर्मिटी हो जाएगी. एंड मेन टिपिकल करेक्टर एपोकार्पी हो जाए, अपीयर हो जाएगी, और क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी. सिम्टम्स ऑन लीव्स, यंग लीव्स शो येलोइंग हो जाएगी, डार्क ग्रीन पेचेस, लार्जर ब्लिस्टर लाइक आइसलैंड of deep green area in the leaf blade. The leaves are much reduced. Viral disease, whatever may be, in which same symptoms like that, reduced leaves, reduce, distort, modify, curling, tendril like shoestring structure. Typical symptoms appear on leaves, tendric like shoestring, यानी सूज की जो लेस है उसकी तरह क्या हो जाएगी? पत्तियां हो जाएगी. Oily water shocked patches use form on the petiole and stems. shoestring like structure हो जाएगा. Papaya ring spot virus. It belong to Potyvirus. It belong to Potyvirus. Papaya ring spot virus. It belongs to family Potyviridae, genus Potyvirus. The virus is a monopartite strand of positive single-stranded RNA. कैसा होगा वायरस? Single-stranded RNA. Surrounded by capsid made of single viral encoded protein. वायरस क्या होता है? वायरस की संरचना कैसी होती है? वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर. Nucleus surrounded by protein like that and called capsid. जो प्रोटीन कवर्ड रहता है न्यूक्लियस से उसे क्या बोलते हैं? कैप्सिड. The virion are filamentous and flagellous measuring 760 to 800 नैनोमीटर. क्या होगा इसका लेंथ? Disease cycle. Virus survive on infected plant in orchard, Chenopodium and cucurbits.
सर्वाइव होगा इस पे. प्राइमरी इन्फेक्शन फ्रॉम इन्फेक्टेड पपाया एंड अदर प्लांट्स. सेकंड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वायरस प्रोड्यूस इन्फेक्टेड प्लांट ट्रांसमिट बाय एफिड. मेन वेक्टर क्या है इसका? ट्रांसमीटर और वेक्टर में माइजस पर्सिकई. माइजस पर्सिकई, एफिस गोसिपई और एफिस क्रॉसिवोरा. Management is a same viral disease. All viral diseases like that. Disease free seedling for planting. Raised seedling in protect net house condition. Grow non-host crop like maize. Destroy infected plant as early as possible. Chemical control to control aphid vector. Insecticide like dimethoate 1 ml per liter. Imidacloprid 5 ml per 15 liter, means 3 ml per liter. Resistant cultivar, resistant transgenic cultivar like rainbow. Rainbow क्या है? Resistant cultivar of papaya. Sunup, grown in Hawaii since 1998. In India, a wild species, Carica cauliflora, is a resistant and may be used in breeding program. Rainbow and Sunup is a resistant variety. Insecticide, control for vector dimethoate. Then what is a typical symptom? इंसेक्ट वेक्टर होगा एफिड, माइजस पर्सिकई. एंड पैथोजन क्या होगा? पोटी वायरस से बिलोंग करेगा. पपाया रिंग स्पॉट वायरस. सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा. देन सिम्टम्स लीव्स पे कैसे होंगे? टेंड्रिल, सूज, स्ट्रिंग स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाएंगे, रिड्यूस डिस्टॉर्ट हो जाएंगे. देन फ्रूट्स पे कैसे होंगे? संकन रिंग लाइक लीजन्स प्रोड्यूस होंगे. देन नेक्स्ट डिजीज अपनी just 1 minute. निमेटोड डिजीज हम साथ साथ पढ़ेंगे. टोमेटो की डिजीज पढ़ेंगे तभी हम निमेटोड पपाया की निमेटोड एक साथ पढ़ेंगे. गवावा विल्ट. गवावा सबने खाया है. अमरूद जिसे हिंदी में बोलते हैं. इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम यूपी इन 1935. दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ गवावा. The symptoms appear during the rainy season, July to August. कब appear होगी? July to August. The leaves are lusterless with brown color. The bark of the trunk is dust color. You have clear seen this picture, please. Bark कैसे होगा? Colorless. Sometimes symptoms appear on one side of the grown up tree or in some branches while the other side remain healthy. ऑर्चार्ड में अगर विल्ट देखेंगे, गवावा विल्ट, तो पौधा एक तरफ से हरा होगा, वन साइड ग्रीन एंड अनदर साइड इज विल्टेड, ड्राइड. यू सरप्राइज सीइंग दैट. मैंने खुद ने देखा है ये अमरूद का प्लांट. एक तरफ से बिल्कुल ग्रीन होगा, दूसरी तरफ से विल्टेड होगा, बिल्कुल ड्राई होगा. इन सीवियर केस द ब्रांच एंड यंग ट्विग स्टार्ट ड्राइंग. सीवियर कंडीशन में क्या हो जाएगी? ट्विग्स और ब्रांच मरना स्टार्ट हो जाएंगे, ड्राइंग, सूखना. One after another, in few weeks, the entire tree is dead. In the root of the tree, the xylem is blackened. Xylem कैसा हो जाएगा? Black due to toxicity of fusarium. Xylem is plugged. You have clear seen. This is a fusarium. Macroconidia यानी जो बड़े साइज के होंगे. Sporodochium ये इसका क्या है? Fruiting structure है. This one is a Fusarium wilt in guava. Perfect stage is Gibrella moniliforme. Fusarium oxysporum forma species. Side is a pathogen. Domain जो मैंने कल तुम्हें बताया, स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन. डोमेन यूकेरिया. किंगडम फंजाई. फाइलम एस्कोमाइकोटा. क्लास सॉर्डेरियोमाइसीटा. ये एस्कोमाइकोटा के विद इन एस्कोमाइकोटा की क्लास है. Sorderomycetes, order Hypocreals, family Nectariaceae, genus Gibrella, species Moniliforme. Fusarium वैसे ड्यूटेरोमाइकोटा से बिलोंग करता है, but Deuterocotina have a asexual
reproduction, not sexual reproduction, means only imperfect stage. अब imperfect stage है तो कहीं ना कहीं इसकी perfect stage तो होगी, तो किस में होगी perfect stage? Ascomycota में. So there is perfect stage and there is imperfect stage. Domain Eukarya, kingdom fungi, group Hypomycetes, genus Fusarium, Oxysporum, Formostis, Side. मॉर्फोलॉजी ऑफ पैथोजन, माइसीलियम कैसा होगा? सेप्टेट होगा फ्यूजेरियम का. इट प्रोड्यूस माइक्रो एंड मैक्रोकोनिडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर. 3 स्पोर प्रोड्यूस फ्यूजेरियम, मैक्रोकोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर. देर आर रेस्टिंग स्पोर. क्लेमाइडोस्पोर क्या है? रेस्टिंग स्पोर विच सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन. फूड रोट में क्या था? oospore. स्ट्रक्चर. देयर इज क्लेमाइडोस्पोर. इन एडवर्स कंडीशन में जब मेजर क्रॉप नहीं होगी, मेन क्रॉप, तो ये किस फॉर्म में होगा? क्लेमाइडोस्पोर में, सुसुप्त अवस्था बोलते हैं डॉर्मेंसी में. माइक्रोकोनिडिया आर बोर्न ऑन सिंपल शॉर्ट कोनिडियोफोर. माइक्रोकोनिडिया मीन्स सिंगल कोनिडिया अराइजिंग laterally on the hyphae, while macroconidia born on branched conidiophore, thin-walled होगा, 3 to 5 septa होगा. You have clear seen this picture. Monomina. Are you listen Monomina? Mute, unmute करो अपने mic को. Monomina, unmute your mic. प्लीज अनम्यूट मोनोमीना. ने क्या नॉनसेंस है ये? इस तरह क्लास में पेश आते हैं? मोनोमीना अनम्यूट करो. यस मैम. कपड़े नहीं है क्या घर में पहनने के लिए? नहीं, कपड़े नहीं है तुम्हारे पास घर में पहनने के लिए, या फिर दिखा रहे हो कोई बॉडी शॉडी? सॉरी मैम, पता नहीं था. मैं कॉलेज से रेस्ट्रिकेट करवा दूंगी, ध्यान रखना इस चीज का. क्या क्या दिखाना चाह रहे हो तुम? होश नहीं है तुमकी क्लास में प्रेजेंट हो तुम? इतने से मैनर्स नहीं है. ग्रेजुएशन करने जा रहे हो, कपड़े नहीं पहन रखे और तुम क्लास ज्वाइन कर रहे हो. मेरी क्लास में दोबारा ऐसे आ गए तो मैं रेस्ट्रिकेट करवा दूंगी, ध्यान रखना इस चीज का. होश नहीं है, क्लास में आ रहे हैं, किस मैनर में है, अपन ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं. Fusarium, Oxysporum, Formostis. This one is Microconidia, Macroconidia septate 2 or 3. 2 or 3 septate Macroconidia. While in Microconidia only single septa. Microconidia have only single septa, while Macroconidia have a 2 or 3 septa, means septation. Fusoid होंगे, pointed होंगे at both end. Chlamydospore are formed in old culture. Smooth, rough walled होगा terminally, and intercalary in maybe singly or pair in chain. Disease cycle. The fungus is a soil born in nature. Fungus survive in root of dead trees. Fungus क्या होगा? Soil born nature. Wilt disease always belong to soil born in nature. Please be point. Concentrate this point. Wilt disease always soil borne disease. तो मैनेजमेंट किस पे डिपेंड करेगा? सॉइल बॉर्न पे. नेचर क्या है डिजीज का? फंगस सर्वाइव इन रूट ऑफ डेड ट्री and Trochlomydospore formed by the saprophytic growth in root.
सैप्रोफाइटिक कंडीशन में, रेस्टिंग स्ट्रक्चर में कैसे सर्वाइव करेगा? एज ए क्लेमाइडोस्पोर इन एडवर्स कंडीशन. इन्फेक्शन इज थ्रू रूट हेयर और थ्रू वाउंड और नेचुरल ओपनिंग. पैथोजन कैसे एंटर करेगा प्लांट में? नेचुरल वाउंड से, नेचुरल ओपनिंग से, वाउंड से और रूट हेयर से. द डिजीज इज मोर कॉमन इन अल्कलाइन सॉइल विथ मॉडरेट सॉइल मॉइस्चर. इन विच डिजीज क्या होता है? कोई सी भी विल्ट डिजीज हो, व्हाटएवर मे बी होस्ट, बट विल्ट डिजीज में क्या होता है? मेनली ये जो तुम्हें याद होना चाहिए, जो जाइलम है उसका वो क्या हो जाता है? प्लग हो जाता है. कैसे? फ्यूजेरियम. फ्यूजेरियम जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, फ्यूजेरिन टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, वो जाइलम को प्लग कर देता है. देन व्हाट हैपनिंग? रूट क्या करेगा? रूट न्यूट्रिएंट और जो वाटर अपटेक करता है वो ऊपर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ प्लगिंग इन जाइलम. देन आफ्टर फोटोसिंथेसिस मेड फूड, लीव्स ने जो फूड प्रोड्यूस किया उसे वो वहाँ रूट तक नहीं पहुंचा सकती. क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट बिटवीन रूट एंड लीव्स और स्टेम प्लगिंग ऑफ टॉक्सिन्स. देन क्या होगा? पानी भी नहीं मिल पा रहा और भोजन नहीं बन पा रहा, तो क्या हो जाएगा? क्लोरोसिस, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी. आफ्टर डेथ ऑफ द प्लांट, विल्टेड, ड्राइड प्लांट. मैनेजमेंट, कल्चरल प्रैक्टिसेस. प्रूनिंग करो सबसे पहले ऐसे ब्रांच की जो डिसकलर्ड हो. मार्च में यूज ऑफ नाइट्रेट नाइट्रोजन फॉर फर्टिलाइजेशन इज यूजफुल. सेलेक्ट हेल्दी सीडलिंग फॉर प्लांटिंग. Wilted plant cut down. The same site should not be used for new planting. Application of gypsum to soil 1 kg per tree और neem cake 10 kg per tree. Chemical control. अब wilt disease appear हो गई तो क्या करें? Standing plant में हमें क्या करना चाहिए? Drenching of soil with 10 to 15 liter of 0.2% carbendazim solution per tree in March, June and September. Spray of metasostox 1 ml per liter and zinc sulfate 3 gram per liter in March and September. Resistant varieties. Grow resistant cultivar like Banarsi, Dholak, Sindh, Nashik, White Guava number 6299, Supreme and Lucknow 49. These are varieties of resistant cultivar of guava. Nothing that like this disease. कुछ नहीं है इस डिजीज में, केवल हमें ये ध्यान रखना है कोई सी भी विल्ट डिजीज, क्या होता है विल्ट डिजीज में? प्लगिंग हो जाएगी जाइलम में, तो ना तो अपटेक होगा वाटर का, ना अपटेक होगा फूड का. तो क्या होगा? सबसे पहले प्लगिंग हो जाएगी, विल्टिंग हो जाएगी, ड्राइंग होगी, लीव डिफोलिएशन हो जाएगी, ड्राइंग हो जाएगी, देन अल्टीमेट डेथ ऑफ द प्लांट. गवावा विल्ट में एक मेन टिपिकल सिम्टम्स क्या है कि वन पार्ट इज ए हेल्दी एंड अनदर पार्ट इज ए इन्फेक्टेड या फिर ड्राइंग. इट इज ए टिपिकल सिम्टम्स ऑफ guava wilt. You have cleared this picture. Pathogen microconidia, macroconidia and chlamydospore. Chlamydospore क्या है? It is a resting structure of fusarium, survive in adverse conditions. Then macroconidia and microconidia, it is a two spore. Macroconidia means यानी macro का क्या होता है? बड़ा साइज, micro छोटा साइज. Macro means septation होगा 2 और 3. Microconidia कैसे होते हैं? सिंगल सेप्टा, ओनली सिंगल सेप्टा. पैथोजन है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मा स्पीसीज साइडी. फॉर्मा स्पीसीज का मतलब क्या होता है? फॉर्मा स्पीसीज किसकी स्पीसीज? होस्ट की स्पीसीज ऑलवेज बिलोंग टू होस्ट. तो होस्ट क्या है यहाँ पे? गवावा. प्लांट क्या होगा अपना? ऑलवेज होस्ट. पैथोजन क्या है? उस पर अटैक कर रहा है, पैरासाइट है. क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं है, विल्ट के ऑलमोस्ट क्लासिफिकेशन सेम होते हैं. फ्यूजेरियम बिलोंग टू ड्यूटेरोमाइकोटा, लाइक दैट रिसेंटली ग्रुप बोलते हैं इसे, हाइपोमाइसिटीज ग्रुप बोलते हैं रिसेंटली, और वैसे ड्यूटेरोमाइकोटा से बिलोंग करता है. इम्परफेक्ट फंगस है. अब इसकी परफेक्ट स्टेज किसमें होगी? एस्कोमाइकोटा में. देन मॉर्फोलॉजी मैंने बता दी तुम्हें, डिजीज साइकिल बता दिया, सॉइल बोर्न नेचर है. देन कैसे सर्वाइव करेगा? क्लेमाइडोस्पोर से.
इंफेक्शन कैसे एंटर होगा? रूट एयर, नेचुरल वाउंड, नेचुरल ओपनिंग. जिंक डेफिशिएंसी ऑफ गवावा. This was first reported by Vasudeva and Rai Chaudhary 1954 from Puskar Village of Rajasthan. तो ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है. जिंक डेफिशिएंसी सबसे पहले कहाँ रिपोर्ट हुई? अपनी जो घाटी है राजस्थान में, पुष्कर की घाटी है उसमें, राय चौधरी के द्वारा 1954. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वासुदेवा एंड राय चौधरी 1954 फ्रॉम पुष्कर वैली ऑफ राजस्थान. It is a disorder. It is a abiotic disease. Disorder, not a biotic, because of nutrient deficiency. It is characterized by yellowing of leaf lamella surface enclosed by vein, interveinal chlorosis. It is a typical symptoms, interveinal chlorosis, lack of yellowness. Appear yellowish. Reduction in size of leaves. क्या होगा? Reduction हो जाएगी, येलो हो जाएगा इसका लीफ लैमिना, रिडक्शन हो जाएगा लीव्स की साइज में, स्टंट हो जाएगा, पौधा कैसा हो जाएगा? बोना हो जाएगा, साइज पत्ती की छोटी हो जाएगी, येलो हो जाएगा लीफ लैमिना. डाईबैक, डाईबैक का मतलब जानते हो? डाईबैक ऑफ ट्विग्स. डाईबैक मीन्स डाई बैक, जस्ट अपोजिट. डाईबैक मरना उल्टा, यानी टॉप टू बॉटम. डेथ ऑफ प्लांट टॉप टू बॉटम, यानी ब्रांच से डेथ नीचे रूट तक, बैक डेथ होना. अच्छा, कंचन यादव ने पूछा है मैम फॉर्मा स्पीसीज साइडी का क्या मीन है? ओके, मैंने अभी तुम्हें डिस्क्राइब किया. फॉर्मा स्पीसीज साइडी, साइडी का मतलब क्या होता है? गवावा का नाम क्या है बॉटनिकल? पहले तो ये पढ़ना, ठीक है. बॉटनिकल नेम है गवावा का. Forma species is a subspecies of a species. Species की भी सब स्पीसीज होना फॉर्मा स्पीसीज, यानी डिपेंड करता है इसके नाम पे, गवावा के नाम पे डिपेंड करेगा ये. The disease part do not bear flower and fruits. Reduction in size of leaves. Dieback of twigs. The leaves are soft. Nothing that like, in which leaf lamina yellow हो जाएगा, डाईबैक होगा ट्विग्स का, सॉफ्ट हो जाएगी लीव्स, इंटरवेनल क्लोरोसिस होगा. डिजीज पार्ट है वो डू नॉट बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर. कॉजल फैक्टर क्या है? जिंक डेफिशिएंसी है. कंट्रोल स्प्रे ऑफ जिंक सल्फेट. Spray of zinc sulfate 0.6% with lime 0.1% effective to control the disorder. स्प्रे करेंगे जिंक सल्फेट का 0.6 with lime से 0.1%. For complete recovery 3 स्प्रे करेंगे at 2 month interval is required. Application of 113 to 140 gram zinc sulfate per tree into the soil is also effective to control the disorder. चलो मोनू, कोई बात नहीं है, तुमने सॉरी लिख के भेजा है, कोई बात नहीं, बट आगे से ध्यान रखो ये क्लास है, और क्लास में हमें कौन से मैनर से, ठीक है ऑनलाइन क्लासें हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतना तो ध्यान रखो कि कब अपना वीडियो ऑन हो सकता है, हम किस पोजीशन में है. यहाँ क्लास है, क्लास में बॉयज गर्ल्स, मैं भी हूँ, मतलब थोड़ा सा मैनर होना चाहिए ना, एक डेकोरम होना चाहिए अपना क्लास लेने का. तो थोड़ा ध्यान रखा करो, कितने डिस्टर्ब होते हैं क्लास में. चलो आगे से ध्यान रखना. नथिंग दैट इज दिस डिजीज. आज हमने पढ़ी रिंग स्पॉट ऑफ पपाया, इन विच नथिंग दैट लाइक, रिंग स्पॉट मीन्स रिंग स्पॉट, लीजन्स बनेंगे श्रिंकड ऑन फ्रूट्स पे, एंड एपोकार्पी फॉर्मेशन. देन लीव्स पे कैसे होंगे? टेंड्रिल, सूज, स्ट्रिंग लाइक, मतलब जूतों की जो लेस होती है उस तरह पत्तियां हो जाएगी, ट्विस्टेड हो जाएगी. देन रिंग स्पॉट एक वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बिलोंग करता है. मैनेजमेंट क्या है वायरस का? सबका एक जैसा मैनेजमेंट होता है. आपको ये ध्यान रखना है उसका वेक्टर कौन है. वेक्टर ट्रांसमिटर है एफिड,
Then imidacloprid dimethoate 1 ml per liter, imidacloprid 3 ml per liter. Then next अपन ने पढ़ी guava disease, zinc deficiency and wilt of guava, in which guava wilt disease like that, कुछ nothing like that, wilt Fusarium oxysporum forma species, in which imperfect stage, perfect stage belong to Ascomycota Zebrella moniliforme. Then symptoms, wilt disease, same symptoms होंगे all host में. क्या होगा? Twig dieback, यानी प्लांट का डेथ होना ऊपर से नीचे तक. सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन में डेथ होगी, जस्ट स्लोली इंक्रीज बॉटम एंड प्लग हो जाएगा. अगर आपसे कहीं भी पूछा जाता है इन मेनी एग्जाम्स आस्किंग दैट व्हाट इज अ विल्ट, मेन फैक्टर, symptoms, typical symptoms, when pathogen is produce toxin and plug xylem and phloem of the plant, then plant ultimate death. Okay, morphology में nothing like that, कोई सा भी wilt हो, whatever may be pathogen, mostly and majorly wilt disease caused always, most of, exception हो सकते हैं एक दो, but most of Fusarium oxysporum से ही most of. तो इसका टिपिकल सिम्टम्स क्या, मॉर्फोलॉजी क्या होगी पैथोजन की? मैक्रोकोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर प्रोड्यूस्ड. क्लेमाइडोस्पोर क्या है? इज ए रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करता है. मैक्रोकोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया, माइक्रो मीन्स छोटा स्पोर, मैक्रो मीन्स उसमें 2-3 सेप्टा होना. देन एंट्री कैसे होगी? नेचुरल ओपनिंग से, वाउंड से. मैनेजमेंट में आपको क्या करना है? कुछ नहीं, ड्रेंचिंग करनी है कार्बेंडाजिम की, जिंक सल्फेट अप्लाई करना है, रेजिस्टेंट कल्टीवार यूज करने हैं. जिंक में कुछ नहीं है, छोटे हो जाएगी पत्तियां, इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाएगा, डाईबैक होगा इसमें, सॉफ्ट होगी, डिजीज पार्ट डू नॉट बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स. सब में एक जैसे सिम्टम्स होते हैं. लास्ट में पौधा क्या करता है? मर जाता है. एट लास्ट अल्टीमेट डेथ ऑफ द प्लांट, पहली बात. दूसरी बात, द डिजीज पार्ट डू नॉट बियर फ्रूट एंड फ्लावर्स. तीसरी बात, रिड्यूस क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्लांट प्रोडक्ट. तो आज हमने 3 डिजीज पढ़ ली है. देन व्हाट इज द नेक्स्ट इन सिलेबस? I think sufficient for today. जसप्रीत कौर, अनम्यूट करो अपना माइक. यस मैम. हाँ जसप्रीत, क्या पढ़ा हमने आज? मैम आज हमने 3 डिजीज पढ़ी. सबसे पहले तो गुआवा की डिजीज पढ़ी, मतलब रिंग स्पॉट डिजीज, और फिर उसके बाद रिंग स्पॉट किसने पढ़ी? डिजीज पपाया की डिजीज पढ़ी. उसके बाद गुआवा की डिजीज पढ़ी, एक तो जिंक डिफिशियंसी और दूसरा गुआवा विल्ट. अच्छा चलो नेक्स्ट पुनीता. पुनीता. यस मैम. हाँ पुनीता, क्या क्या पढ़ा हमने आज? पपाया रिंग स्पॉट और गवावा विल्ट और जिंक डेफिशिएंसी इन गवावा. अच्छा, क्या सिम्टम्स होंगे जिंक डेफिशिएंसी के? मैम लेमा पीली येलो हो जाएगी. अच्छा, इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाएगी. Yes. ठीक है. अच्छा ये बताओ क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म था विल्ट डिजीज का गवावा में? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम स्पीसीज साइडी. साइडी. अच्छा चलो म्यूट करो अपने इसको. साही. मैम साही कुमावत.
साई कुमावत, यस मैम। हाँ साई, क्या पढ़ा हमने आज? मैम मैंने गवावा की तीनों डिजीज पढ़ी है, एक मेरी छूटी। अच्छा, और क्या पढ़ा? गवावा विल्ट, जिंक डेफिशिएंसी और अच्छा, और क्या पढ़ी? तीसरी डिजीज कौन सी पढ़ी? नहीं पता। हम्म पता है मैम। हम्म ध्यान नहीं है तुम्हारा। चलो ठीक है, मैं भी अब आगे से सिलेबस खींचना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं क्यों इंटरेस्ट लूँ इतना। यही है, शायद मुझे भी यही लग रहा है। चलो नेक्स्ट, ऋषभ। एक सेकेंड। दीपिका। दीपिका शर्मा। यस मैम। हाँ, क्या पढ़ा दीपिका आज हमने? मैम गवावा की 2 डिजीज, विल्ट डिजीज एंड जिंक डेफिशिएंसी एंड पपाया की रिंग स्पॉट डिजीज। पपाया रिंग स्पॉट में क्या सिम्टम्स थे? मैम उसमें एक तो फ्रूट फॉर्मेशन विथ इन, मतलब एपिकार्पियम, अच्छा, मतलब फ्रूट फॉर्मेशन मतलब विथ इन विदिन फ्रूट, फ्रूट। मतलब एक फ्रूट के अंदर फ्रूट, दूसरे फ्रूट का प्रोड्यूस होना। वेरी गुड। और दूसरा क्या हाँ। सिम्टम्स है? जैसे मैं और कई बार मैम बोलती हूँ कि नाम में बहुत कुछ छुपा है। और संग फ्रूट्स के अंदर संकन, मतलब रिंग्स टाइप के स्पॉट बन जाते हैं। वेरी गुड, वेरी और गुड। वायरल डिजीज। अच्छा ठीक है। गुड्डू यादव। गुड्डू यादव। आर यू लिसन गुड्डू यादव? हाँ मैम, यस मैम। हाँ गुड्डू, ये बताओ कि हमने पढ़ा है पपाया में कौन सी डिजीज पढ़ी हमने? पता नहीं मैम। जब पता नहीं तो कौन सी डिजीज याद है तुम्हें? कौन सी पता है हमने पढ़ी है जो? क्लास क्यों ज्वाइन कर रखी है, मुझे ये बताओ तुमने। ज्वाइन करी भी है या नहीं करी, या फिर वैसे ही फोन एक कोने में था और तुम कहीं और थे? मैम की हम्म कौन सी डिजीज का नाम तो याद होगा ना? मैंने 3 डिजीज पढ़ाई है मेरी मैम अभी क्लास ज्वाइन कीजिए में। थे गुड्डू, ऐसा नहीं तो चलेगा। पहले थोड़ा। बस ये तो तुम शुक्र मनाओ कि ये ऑनलाइन क्लास है अपनी। अदरवाइज ऑफलाइन होती ना तो शायद तुम मेरी क्लास में आने से पहले 10 बार सोचते। जब अगला टीचर मेहनत करके आपको इतना टाइम इतना पढ़ा रहा है, आपको ये नहीं पता कि 3 डिजीज मैंने कौन सी पढ़ाई है। और तुम्हारे नाम बकायदा मैं नोट कर रही हूँ, कौन अच्छे से रिप्लाई कर रहा है और कौन अच्छे से रिप्लाई नहीं कर रहा। अटेंडेंस के लिए नहीं पढ़ाती मैं, ये ध्यान रखना इस चीज का। और अटेंडेंस तो मैं उसी के बेस पे दूंगी जितने तुम कॉन्सेंट्रेट होके रहोगे क्लास में। अनिल नैनोमा। अनिल, यस मैम। यस मैम। क्या क्या पढ़ा अपने? रिंग स्पॉट ऑफ पपाया एंड गवावा विल्ट और जिंक डेफिशिएंसी गवावा में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो म्यूट करो। गीता गवरिया।
गीता, गीता। मैम। हाँ गीता, हमने क्या क्या पढ़ा? यस मैम। क्या क्या पढ़ा हमने आज? मैम हमने आज 3 डिजीज पढ़ी। हम्म रिंग स्पॉट ऑफ पपैया, हम्म गवावा विल्ट और जिंक डिफिशियंसी ऑफ गवावा। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म था रिंग स्पॉट ऑफ पपाया का? रिंग स्पॉट। हाँ क्या है? रिंग स्पॉट। हाँ, रिंग स्पॉट पपाया डिजीज का क्या पैथोजन था? मैम ये वेक्टर, क्या ये कह रहे हो? एफिड वेक्टर के थ्रू होती है। ये वायरस डिजीज है और इसमें माइक्रो एफिड मतलब मैम ये वायरस डिजीज है। ये एफिड के थ्रू स्प्रेड होती ध्यान है। रखा करो, इसका वेक्टर वायरस से ही होता है। एफिड। पपाया रिंग स्पॉट वायरस, ये इसका डिजीज का पैथोजन होता है। ठीक है, पढ़ाई क्या करो सब बच्चे। चलो ठीक है।